کیونکہ جو پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما تھے, میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ ورکرز کو کہہ رہے تھے کہ اندھیرا ہو گیا, اب انہوں نے سیدھی گولیاں چلانی ہیں, آپ ادھر سے چلے جائیں. ورکر کہہ رہے تھے کہ ہمیں بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جب تک عمران خان نہیں آئے گا آپ نے ادھر سے نہیں جانا, عمران خان کو کے بغیر ہم نے واپس نہیں جانا. سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے. تو میں تو کیونکہ وہاں پہ صبح 11 بجے سے لے کے اور رات کے 11:30 12 بجے تک موجود تھا, اور میں نے جو پی ٹی آئی کے جو مارچ میں لوگ آئے تھے ان کے درمیان بھی میں نے گھوم پھر کے بات چیت ان سے بھی کی, سیکورٹی فورسز والوں سے بھی بات چیت کی. تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. اب 5 بجے جب ڈی چوک کنٹرول میں لیا تو اب یہ جو 2 بجے سے لے کے اور 5 بجے کے درمیان جو 2.5-3 گھنٹے تھے, اس دوران اتنی شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لبنان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا میں افغانستان میں گھوم پھر رہا ہوں, اتنی فائرنگ تھی. اس میں کچھ جو زخمی تھے میں ان کو بھی ملا ہوں, تو کچھ زخمیوں کو تو ربڑ کی گولیاں لگی ہوئی تھیں اور کچھ زخمیوں کو آنسو گیس کے شیل لگے ہوئے تھے. مجھے کوئی ایسا زخمی نہیں ملا جس کو کہ کوئی کلاشنکوف کی یا رائفل کی گولی لگی ہو. لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے کچھ لوگ مارے گئے ہیں, وہ ان کی لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد 5:30-6 بجے کے قریب, کیونکہ ہمارا جو دفتر ہے وہ بالکل ڈی چوک کے پاس ہے, تو ہمیں جو ہے نا وہ آرڈر آیا کہیں سے کہ آپ اپنی بلڈنگ جو ہے اس کی بتیاں بجھائیں اور ادھر سے رفو چکر ہو جائیں. السلام علیکم, میں ہوں امیس منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. 26 نومبر کو اسلام آباد ڈی چوک کے اندر جو سانحہ پیش آیا, جس کے اندر مبینہ طور پر ایک سیاسی پارٹی کے ورکرز کے اوپر شیلنگ کی گئی, ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو چھپایا گیا. اور اس کے بعد جو ان لاشوں کی تحقیقات کر رہے تھے کہ آخر جن کو یہ گولیاں لگی, جن کا یہ خون رسا تھا, یہ لاشیں آخر گئی کہاں پر. اور وہ صحافی جو اس کے تحقیقات کرتے ہوئے ہسپتالوں تک جا رہے تھے, ان کو بھی اغوا کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اور کل رات سے 2-3 صحافی ایسے ہیں, نامور صحافی, جن کو اغوا کیا گیا. سب سے پہلے تو ہمارے مطیع اللہ جان صاحب, ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور رات کے تو اغواہی کیا گیا ایک طرح سے. ان کو پیمز ہسپتال کی جو پارکنگ ہے وہاں سے, اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ ثاقب بشیر تھے, وہ موجود تھے. اور مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کی تحقیقات کر رہے تھے. ظاہر ہے کوئی خبر فائل کر رہے ہوں گے کہ آخر میں نے یہ خبر دینی ہے یا نہیں دینی ہے, یا وہ اپنے طور پر جو صحافی کو ایک انویسٹیگیشن چاہیے ہوتی ہے, خبر فائل کرنے سے پہلے تحقیقات چاہیے ہوتی ہیں کہ میں یہ خبر دینے والا ہوں, اس سے پہلے مجھے اس کی تحقیق کرنی ہے. تو ظاہر ہے وہ کر رہے ہوں گے کہ آخر یہ لاشوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو گورنمنٹ غائب کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو میں پتہ لگاؤں. تو اس لیے وہ گئے پیمز ہسپتال میں اور واپسی پر ان کو اغوا کر لیا گیا. اور صبح تک پتہ لگا کہ انہوں نے نشے کی حالت کے اندر پولیس والوں کو مارنے کی کوشش کی ہے اور ان کے پاس سے آئس برآمد ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہماری عدالتیں, انہوں نے بھی مطیع اللہ جان, جن کی ساری زندگی تقریباً کورٹ رپورٹنگ میں گزر گئی, انہوں نے عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے عدالتوں کا ایک ایک حرف رپورٹ کر کر کے اپنی زندگی گزار دی. ان کا ہی جو ریمانڈ ہے وہ دے دیا پولیس کو. اور جبکہ جج صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ اس طرح کا شخص نہیں ہے, اور اس کی گواہی حکومت بھی دے رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ جھوٹا ہے. ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایسے مقدمات کیسے بنتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر بھی بنا تھا. تو اب مطیع اللہ جان کو جو ہے وہ ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اور دوسری جانب شاکر اوان, لاہور ہائی کورٹ کے ایک سینئر رپورٹر ہیں, ان کو بھی رات گئے اغوا کر لیا گیا ہے. مطیع اللہ جان کی تو گرفتاری ڈال دی گئی ہے, لیکن شاکر اوان کی ابھی تک نہیں ڈالی گئی ہے. اسی کے ساتھ جو حکومت ہے وہ مسلسل یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اپنا پلو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جو سانحہ پیش آیا 26 نومبر کو اسلام آباد ڈی چوک کے اندر, لیکن یہ ہو نہیں پا رہا. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ وہاں پر کچھ صحافی بھی موجود تھے اور بڑے جید قسم کے صحافی موجود تھے, اور اس کے بعد انٹرنیشنل رپورٹرز بھی وہاں پر موجود تھے. تو ان کی جانب سے گواہیاں آنا شروع ہو چکی ہیں. نہ صرف ان کی جانب سے بلکہ ہمارے جو سابق ایک وزیر اعظم ہیں, انہوں نے بھی اس کی گواہی دے دی ہے اور بتا دیا ہے کہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک بھی بندہ وہاں پر شہید نہیں ہوا, ایک بھی بندے کو گولی نہیں لگی, یہ بالکل جھوٹ بات ہے. اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میں نے خود جو ہے میرے جاننے والوں کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, ان کے جنازے ہوئے ہیں.
क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली गवाही की। पहली गवाही आई है हमारे हामिद मीर साहब से, जो कि पाकिस्तान के टॉप नॉच जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने सारी मंजरकशी की है 26 नवंबर की, और उन्होंने बताया है कि उस दिन क्या कुछ होता रहा और ये सारा जो वाकया पेश आया इसके जिम्मेदार कौन थे, क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे। उनके ऑफिस का दफ्तर जियो का वहां पर मौजूद है, तो वहां पर वो आवाम के अंदर गए थे बाकायदा और जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए ये गुफ्तगू की कि 26 नवंबर को लोग जो हैं वो डी चौक पहुंचना शुरू हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद जो है 250 के करीब जो लोग हैं वो डी चौक पर पहुंचे। उन्होंने जाकर वहां पर कब्जा किया, और जब कब्जा किया और कंटेनर्स के ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन पहले वो इस बात पे हैरत ज़दा हैं हामिद मीर के जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो 300-400 की तादाद में तहें बनाकर खड़े थे। तो इन सबको पास कैसे कर लिया ये 250 से 300 जो वर्कर्स हैं हमारे पीटीआई के। और उसके बाद जो इसके हुआ क्या कि जब वो वहां पर पहुंचे हैं तो उन्होंने जाकर बाकायदा रेंजर्स के साथ सलाम दुआ की है, और उसके बाद उन्होंने उनको वेलकम किया रेंजर्स ने, और वो जो है वो वहां से चले गए, अपना असला वगैरह लेकर चले गए। ये सब कुछ होता रहा जब जो वर्कर्स हैं पहली दफा डी चौक पहुंचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पहुंचने के बाद ये बात वो कर रहे हैं 26 नवंबर 1 बजे की। जब ये हुआ तो हामिद मीर बताते हैं कि वहां पर मुझे तो डिसिप्लिन देखने को मिला उस इदारे के अंदर, जिसके हवाले से हमें यह बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। लेकिन 2 बजे के बाद 26 नवंबर को हुआ ये कि वही रेंजर्स जो कि गए थे वो दोबारा से आए, और उन्होंने आकर जो है वो एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। और उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक वो बताते हैं कि मेरे सामने गोलियां चलाई गईं। ये सब कुछ उन्होंने इंटरव्यू के अंदर बताया कि मेरे सामने गोलियां चलाई गईं, और ये सब कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब के वर्कर्स की जानिब से बताया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ यही नहीं बताया, उन्होंने जो है ये वजह भी बताई कि ये सारा मामला नाकाम कैसे हुआ। वो बताते हैं कि ये जो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है पीटीआई के अंदर, ये बहुत बुरी थी उस वक्त। और जो वर्कर था वो बुशरा बीबी के लिए आया हुआ था, और बुशरा बीबी का इंतजार कर रहा था, और उसके लिए पुरजोश था कि बुशरा बीबी ने कहा है कि हम इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे। हामिद मीर बताते हैं कि जब गोलियां चलना शुरू हुई तो उसके बाद जो एमपीए एमएनए वहां पर मौजूद थे, जो आगे डी चौक पहुंच चुके हुए थे, बाकी सारे लोग जो है पिछले बड़ा काफिला जो गंडापुर का था और बुशरा बीबी का था वो पीछे चाइना चौक खड़ा हुआ था। तो जब आगे वाले वर्कर्स ने जो है वो पीछे वालों को मिलाना चाहा तो वो नहीं मिले आपस में, और उसके बाद जो है हामिद मीर कहते हैं कि मैंने जाकर उनसे कहा भी कि भाई वो आपके वर्कर्स कुछ आगे हैं, आप लोग क्यों नहीं जा रहे। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं वो हमारे वर्कर्स नहीं हैं, और उन्होंने उनसे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। और यूं फिर हुआ ये कि वो जो 250 वर्कर्स थे उनको वहां पर मारपीट का सामना करना पड़ा, शेलिंग का सामना करना पड़ा जैसे ही ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ। और जब रात के 9 बजे तो फिर ये जो सारे मामलात हैं वो मजीद ख़राब होना शुरू हुए। मीडिया के जो दफ्तर हैं उनको भी बंद करने का कहा गया, और उसके बाद जो गोलियां हैं मुबैना तौर पर वहां पर चलाई गई हैं और वर्कर्स के ऊपर चलाई गई हैं। लेकिन हामिद मीर बताते हैं कि वहां के वर्कर जो हैं वो फुली चार्ज थे, और वो कह रहे थे कि हमने यहां से नहीं जाना, इवन कि वहां पर गोलियां चल रही थी, और वो कहते थे कि हमने बुशरा बीबी का जो ऑर्डर है वो माना है। जब उनको उनके एमपीए और एमएनए कहते थे कि अब गोलियां चलने वाली हैं, रात का अंधेरा हो चुका है, तो यहां से हम चलते हैं, लेकिन वर्कर अपने एमपी एमएनए को कहता था कि नहीं हम यहां से नहीं जाएंगे, और चूंकि हमें बुशरा बीबी ने कॉल दी है और उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान के लिए बगैर नहीं जाने वाले, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। और वर्कर्स ने गोलियां खाने के बाद भी वहां खड़े रहने का फैसला किया था। लेकिन फिर हुआ क्या कि अचानक से पीछे आग लगी, और देखा गया कि वो आग जो है वो बुशरा बीबी के कंटेनर पे लगी। और जब ये मालूम हुआ वर्कर्स को कि हमारे एमएनए एमपीए भी भाग गए हैं, और उसके बाद जो हमारे क़यादत है जिसके लिए हम खड़े हुए थे उसकी भी गाड़ी के अंदर आग लग गई है, और वो भी गंडापुर और बुशरा बीबी दोनों गायब हो चुके हैं, तो हमारे यहां पर रहने का जवाब बचता नहीं है। फिर वर्कर्स को मजबूरन जाना पड़ा। लेकिन यहां पर जो वर्कर्स आए थे बहुत कलील तादाद में थे, बेशक बहुत कलील तादाद में थे, और बहुत बड़ी तादाद जो है वो सिर्फ केपी से ही थी, बाकी तमाम तर सूबों से वहां पर लोग नहीं पहुंचे। लेकिन उन्होंने बहादुरी का मुजाहिरा किया उनकी, लेकिन जो उनकी जो क़यादत है उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं पाई गई, और उसके बाद वर्कर्स ने बाकायदा तौर पर अपनी क़यादत को लान
मान तान किया, गालियां दी, और उसके बाद यही वजह है कि जो अब पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब हालिया जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बुशरा बीबी जो है वो अपनी पार्टी की क्लास ले रही हैं, अपनी जो सीनियर क़यादत है जिनके अंदर इवन के सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद हैं और इसके अलावा दीगर क़यादत भी मौजूद है, उनकी क्लास ले रही हैं। और बाकायदा तौर पर उनको ये कहा जा रहा है कि बगैरत और बेशरम हो आप लोग। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। अच्छा, ये तो बात होगी ना अब की, लेकिन एक और गवाही जो हुकूमती प्रोपेगेंडे को धबरदूस कर देती है वो गवाही है हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो शाहिद खकान अब्बासी हैं उनकी। 2 मेरे हल्के के हैं, एक मैं जानता हूँ मर्दान में, 3 आदमी मैं जानता हूँ। 2 आपके हल्के के साथ मुजाहिरीन जी वो इत्तेजाज के लिए आए हुए थे? एहतजाज में आए हुए थे। उनको गोली लगी है, दोनों को गोली लगी है। उनकी जनाजे हुए कल। उनकी बॉडीज सर मिल गई फैमिली? जी उनके जनाजे हुए कल, मर्दान में जनाजा हुआ है। अभी हालिया उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और एक डॉन न्यूज़ पर बैठकर टॉक शो के अंदर फरमाया कि मेरे जानने वाले 3 अफराद जो हैं वहां पर जिनको गोलियां लगी हैं उनके जनाजे पढ़ाए जा चुके हैं। 2 वो बताते हैं मेरे हल्के से मौजूद हैं, एक वो बताते हैं कि मर्दान से हैं और उनके जनाजे पढ़ाए जा चुके हैं। जबकि हमारी हुकूमत, हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो इतने इल इन्फॉर्म्ड है कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा तौर पर कहते हैं कि मुझे प्रूफ ला के दो, जबकि पूरी दुनिया का मीडिया ये चीख चीख कर थक गया कि वहां पर गोलियां चलाई गई। आप अल जजीरा उठाकर देख लीजिए, आप द गार्डियन उठाकर देख लीजिए, और आज तो बीबीसी ने भी इसके ऊपर बड़ी ही स्ट्रेट रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि वहां पर गोलियां चली थी और बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन आपके वज़ीर दाखिला कहते हैं कि मुझे सबूत ला कर दो। और कौन सा सबूत आपको चाहिए? आपको लाशें पैक करवा कर भिजवा दें, क्या करें आपके लिए? ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आपके मुल्क के अंदर हो रही हैं। और कल रात से सहाफ़ियों की बारी आई हुई है और 2-3 सहाफ़ी एक रात के अंदर अगवा हुए, एक को छोड़ दिया गया, 2 को जो है, एक को नामालूम है अभी भी, और एक के ऊपर ऐसे मज़ाक़ा खेज जो मुकदमात हैं वो बनाए गए हैं कि क्या ही कहा जाए इसके ऊपर। तो ये सूरत हाल जो है वो बन चुकी है। लेकिन अब दोबारा से डी चौक के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और ये मालूम होता है कि अब दोबारा से जो मामलात हैं वहाँ पर ख़राब होने वाले हैं। कुछ इतलात ये हैं कि केपी के अंदर से जो है वो गवर्नर राज लगाया जा रहा है, उसकी धमकियाँ दी जा रही हैं कि दोबारा से वहाँ से कोई काफ़िला इस तरफ रुख ना करे, या फिर ये भी हो सकता है कि हुकूमत के पास कोई इतलात हो कि दोबारा से जो काफ़िले हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक एहतजाज अभी जारी है, तहरीक अभी जारी है और वो तब ख़त्म होगी जब इमरान खान कहेंगे, और इमरान खान ने अभी नहीं कहा है। लेकिन अभी जो मीटिंग्स है वो होना बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उनकी और उनकी जो कोर कमेटी है उनकी, और उसके बाद ही कुछ फैसला होगा कि आखिर तमाम तर क़यादत कब इकट्ठी होगी एक पेज के ऊपर और कब ये सारे बाहर निकलेंगे। और जब ये बुशरा बीबी बहुत ज़्यादा जो है वो अपना किरदार अदा कर रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो हीट के अंदर भी हैं कि आखिर आप कौन होती हैं, ये सारे जो सियासी लीडरान हैं उनको डायरेक्शन देने वाली और उसके बाद जो है वो पार्टी की क़यादत करने वाली, जबकि इमरान खान ने आपको मना कर रखा है। और उसके बाद गंडापुर के साथ भी उनकी इसी बात पर बहस हुई थी। लेकिन सूरत हाल अभी तक यही है, जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई सियासी कमेटी जो है वो फैसला करेगी तब भी जो हतमी राय है वो दी जा सकेगी। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।